are lucky here that this is a long pending session in Jaipur, I must say. That the people are able to interact with the history, forms, concepts, its ongoing current problems and everything. But Jaipur is really lacking on this topic, that how market is working, how forms are connected with that, who are the contributors, who are going to be play a role. So before starting the session, I just allow me to introduce everyone. Today we have Kushwaha sir, Shailendra Kushwaha sir. He is a former dean of MS University, an art historian, and till today he's enlightening all the topics with us from last 2 days. And Leena Naam Joshi ma'am, she is an art curator also, art and design consultant, running her firm Arts Works and working for the public art installations, which is now these days is very important as it's changing the scenario of all cities. Now, next, Archana Surana ma'am, she is everybody knows her, that she is a founder and director of Arch College of Design and Business. And I welcome Vijay sir. He is a CEO of Kalaneri Art Gallery and Fine Arts Institute. So let's start this session. And first of all, we are going to convert and understand this thing, the today's art trends on the basis of the modern trends and as well as the classical forms, which are still not lost its identity. And from the era of the ancient maybe, and maybe it's lying or printed on the homes, maybe as an Sanji art, something like that, or maybe on the printed textiles, maybe on the art canvases, maybe on the design form, are working in the modest way and in the classical way. So let's understand this from Shailendra sir, and then we can continue with the man. This topic is very, very, in the sense, dicey. Dicey means to frame everything in linear manner, to deal with this area of marketing of art or the trends of art, and then under the globalization, the process of globalization. Today's artist community in our Indian context is very, very open, a lot of access with outer world, and marketing, when we say marketing, it's a very, very complex issue. Artist on one hand cannot market his own work of art. And if you go to back in the early, or you can say pre-modernistic phase means already modernity begins. But we call in chronological sense that pre-modern, modern and post-modern. Like, for that matter, the work of the early masters in Indian context, I'm starting from Bengali school. Just for a reference, Nandlal Bose, that particular lineage of painters or artists from that the revivalistic tendencies which were growing in Bengal through the Bengali school of art, and then brought to the mainstream of art trend. Now, what was the trend those days? Nobody cares how much money can be given to Nandlal Bose's work, how much money, value of art can it be done with the kind of price tag, like K.G. Subramanian was never conscious, never bothered about his painting's price. That time what is happening? Give me Ramkinkar Banerjee, for that matter you take from Shantanu the stalwart. All these three names are stalwart in the history of Indian contemporary art. When I was studying there, my classes were taken by Binod Bihari Mukherjee, Ramkinkar Banerjee. These were the teachers. Ramkinkar Banerjee's painting artwork just lying below the cot. No one cares how his paintings are kept, and ultimately what is happening, those were the time when art was just for art's sake, you can say, स्वांता सुखाए के लिए जो बोलते हैं हम लोग, आर्टिस्ट काम करता था, बनाता था, वो उसको एग्जीबिशन में ज़्यादा इंटरेस्ट था कि मेरा काम लोग देखें, मार्केटिंग में नहीं उतना इंटरेस्ट होता था। और मेरे जो 6-7 डिकेड्स दशक जो एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट,
एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ आर्ट और आप कह लीजिए एज ए मैनेजर ऑफ डिज़ाइन इंस्टीट्यूट, जो मैं देख रहा हूँ बड़ौदा में रहकर, वही मेरे दिमाग में आता, उन्हीं को मैं थोड़ा सा शेयर करूँगा शॉर्ट में, कि जो ट्रेंड्स थे आर्ट के वो तो अपनी तरह से अपने एक ग्रो कर रहे हैं. They are not bothered. Early phase of our so-called artists were not caring for the price tag. जो ठीक है एग्जीबिशन कर दिया, कोई खरीद ले गया, कुछ बोलते ठीक है इसके कैनवास के कलर के पैसे मिल गए बहुत हो गया. वहाँ से आप शुरू कीजिए और आज आइए. आज क्या हालत है आर्ट मार्केट की. मैं तो देखता हूँ बड़ौदा में देयर आर गैलरीज आर मशरूमिंग, बायर्स आर कमिंग. मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ. आई एम स्क्रैपिंग एवरीथिंग. आई एम कमिंग टू द रिसेंट ट्रेंड्स इन आर्ट मार्केटिंग. ग्लोबलाइजेशन को आप छोड़िए, आर्ट मार्केट अभी फ्लोरिश कर रहा है, बाहर भी काम जाता है, इंडियन आर्टिस्ट का बहुत बिकता है. पहले सूजा, गायतोंडे, हैबर, बेंद्रे के काम ऐसे ही पड़े पड़े निकलते थे लोगों के घरों से. अब जब कौन से लोग कह रहे गायतोंडे और सूजा का ये काम तो करोड़ों में बिक रहा है, तो वो सारा शिफ्ट ही चेंज हो गया है आर्ट मार्केट में. नाउ द कलेक्टर्स एंड बायर्स आर ऑल्सो playing a very tricky role in this entire gamut of art selling and art purchasing. Example I am citing from my own faculty. भूपेन खक्कर का काम लोग तो बहुत कैजुअली लेते थे, वो बना के दे देते थे इसके तुम रख लो. आज भूपेन खक्कर की पेंटिंग लंदन में तो दुनिया भर के कलेक्टर्स खरीद रहे हैं. और उसका हुआ क्या, बड़ौदा में लोग फेक बना कर भूपेन खक्कर को बेच रहे हैं. मेरे पास कई बार आते हैं अथेंटिकेशन के लिए, होता है अथेंटिकेट करने के लिए. तो ये जो सारा एक जो ट्रेंड चल रहा है, फिर आर्टिस्ट ने खुश होकर काम दे दिया. जैसे हुसैन साहब का एक फेज था जब उन्होंने बॉम्बे में जब स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत से अपने वर्क दोस्तों में बांट दिए इधर वो सारा. तो एक तो आर्ट कलेक्टर्स का भी रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि आर्ट कलेक्टर्स काम इकट्ठा करके जो बायर इकट्ठा करते हैं और फिर वो उसको क्यूरेट भी करते हैं. तो फॉर्चुनेटली द रोल ऑफ क्यूरेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिग्निफिकेंट इन दिस द काइंड ऑफ वेरी टर्मोइल सिचुएशन ऑफ अवर मार्केटिंग इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट. अभी क्या हुआ, थोड़ा सा क्यूरेट होने से शोज़ का एक उनका जो एक अथेंटिसिटी कह लीजिए आप, या उनकी क्रेडेंशियल देख लीजिए, आर्ट वर्क का थोड़ा सा एक मेन स्ट्रीम उसमें आता है. अभी यही चीज़ हुई है कि जैसे बड़ौदा में हमारा जैसे 4th ईयर का बच्चा है जो पेंटिंग पास कर रहा है, बायर्स आते हैं एट द टाइम ऑफ एनुअल डिस्प्ले, दे आर परचेजिंग आर्ट वर्क. और जो काम उसको पता भी नहीं है कि हमारा काम इतने में बिकना चाहिए, वो उसकी अच्छी सी वैल्यूएशन लगा के वो 2-4 लाख दे दिया एक पेंटिंग. तो वो बच्चा भी उसमें परेशान हो जाता है कि मेरा काम अभी 2 लाख का 4th ईयर में बिक रहा है, तो मैं तो अब ऐसे ही काम करूँगा. अगर ज़रा भी चेंज किया स्टाइल तो काम नहीं बिकेगा. बहुत से तो अब बड़ौदा में आर्टिस्ट का पूरा हब है. अभी मैं फिर जंप कर रहा हूँ दूसरे एरिया में, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, कि कोरोना से पहले, पैंडेमिक से पहले लोग शेयर में जो लोग डील करते थे वो आर्ट वर्क में डील करने लगे, क्योंकि थोड़ा टैक्स बचाना है, ये करना है, तो इट्स वेरी सेफ गेम तो आर्ट वर्क खूब बिका. इवन बहुत से लोगों ने किया, शेयर थोड़ा सा नीचे गया या रियल एस्टेट वाले खरीदने लगे. फिर वो इंटीरियर का एक चैनल आया कि आर्ट वर्क खरीद के थ्रू इंटीरियर डिजाइनर्स वो सब ऐसे करके. तो इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन. तो उसको लीनियर वे में हम अगर वो करने जाएंगे ट्रैक तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. अभी जो पैंडेमिक से पहले बहुत काम बहुत खूब महंगा बिका, खूब लोगों ने खरीदा. अभी जो कलेक्टर बड़ौदा के थे या बॉम्बे से आते हैं बड़ौदा में, वो अपने कलेक्शन का काम बड़ौदा में लाके गैलरी में एग्जिबिट करते हैं बेचने के लिए, फॉर सेल. काम नहीं बिक रहा है. तो हर तरफ से ये प्रॉब्लम हो रहा है. अभी बड़ौदा के बहुत से अपकमिंग यंग आर्टिस्ट ने खूब कमाया पैसा, मतलब बेचा, वर्क बेचा, बीच में बिल्कुल बंद हो गया तो हालत ख़राब है, काम करने के लिए भी प्रॉब्लम हो रहा है. तो हमारे यहाँ कोई, अब इसी को हम अगर ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखें, वहाँ पर एक सिस्टम है आर्ट वर्क का, कुछ ऐसा एक फिक्स उनके पैरामीटर्स हैं. अब हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है, कभी उसको 100 रुपये की पेंटिंग है, कभी वो 10,000 की हो रही, कभी 50,000. तो ऐसे ये जो शिफ्टिंग ट्रेंड्स हैं आर्ट मार्केट के, और आर्ट के जो ट्रेंड्स हैं, और आर्ट की कितनी अंडरस्टैंडिंग बायर्स को, कलेक्टर्स को है, उनका रोल क्या है, गैलरी ऑनर्स का क्या रोल है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है ये. तो उसका आगे चलकर अभी इसी सेशन में सबसे ज़्यादा तो आप लोगों का उसमें योगदान होगा, क्योंकि आप लोग डील कर रहे हैं आर्ट मार्केट से सीधा, और आप क्यूरेट कर रहे हैं. सो आपके अनुभव और आपका जो भी है वो शेयर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. मैंने तो बता दिया एक जस्ट काइंड ऑफ वर्ड्स आई व्यू
कि जो ट्रेंड हम देखते हैं बड़ौदा में। अच्छा, उसमें क्या हुआ, पहले जो लोग एंटीक आर्ट कलेक्ट करते थे वो रिसेंटली वो भी शिफ्ट हो गए कंटेम्प्रेरी आर्ट में। तो बहुत सा वो केओटिक सिचुएशन है। तो इसको कैसे हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाके एड्रेस करें इस प्रॉब्लम को, और फिर प्रॉब्लम नहीं है और कहने के लिए प्रॉब्लम है। तो अभी आगे के जो जितने भी ऐसे मुद्दे इससे जुड़े हुए हैं वो आप लोग थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा। थैंक यू। क्योंकि टॉपिक इमर्जिंग आर्ट ट्रेंड्स का है, इज दिस ओके? क्योंकि टॉपिक इमर्जिंग आर्ट ट्रेंड्स, आर्ट एंड डिज़ाइन ट्रेंड्स का है, मैं इसी टॉपिक पे प्राइमरीली बात करूँगी, क्यूरेशन और आर्ट ट्रेंड्स पे। और हम समझते क्या है आर्ट ट्रेंड्स को और कैसे इमर्ज हो रहे हैं या क्या रीज़न है। आई वुड लाइक टू टॉक मोर अबाउट दैट देन ग्लोबल मार्केट। आई मीन वो तो फिर एक और बिल्कुल ही डिफरेंट एस्पेक्ट है जिस पे आपने बहुत लाइट डाली है। हम बात करें तो टाइम is one of the major factors which impacts art trends, and majorly जो है वो बहुत cyclical nature है, history repeats itself। जैसे संगीता ने बात करी कि हम अपनी क्लासिकल जो भी फॉर्म्स हैं क्या हम उनको भूल जाते हैं जब इमर्जिंग ट्रेंड्स की बात करते हैं। तो डेफिनेटली हम इंस्पिरेशन तो उसी में से ड्रॉ करते हैं, सब कुछ जो नया है वो वहीं से आ रहा है, उन्हीं जड़ों से उपज रहा है। तो बीज तो वही है, उसमें से हम नई नई इंस्पिरेशन ड्रॉ करते रहते हैं। और महाभारत का एक गीता का एक उपदेश भी है जिसमें वो है कि आप एक ही वस्तु को, एक ही इवेंट को आप कितनी दृष्टि से देख सकते हो और कितनी बार देख सकते हो और कितने नए एक्सपीरियंस उसमें से गैदर कर सकते हो, वो अपने आप में कला है। तो अगर हम उसकी बात करें तो अगर अशोका के पिलर की बात करें या अजंता की केव्स की बात करें, वहाँ की आर्ट की बात करें, तो हमने उनमें से इतनी सारी इंस्पिरेशन ड्रॉ करके बहुत कुछ नया निकाला है, बहुत कुछ नए कला को जन्म दिया है। बट इंस्पिरेशन वहीं से आ रही है, वो हमेशा रहा है। और दूसरी बात जो मैं कहूँगी कि कलाकार आइसोलेशन में अलग से अकेला काम नहीं कर सकता। साधना है, वो डेफिनेटली साधना है, बट अभी जो है वो सोशल ऑर्डर में काम कर रहा है, सोसाइटी के साथ काम कर रहा है। तो जो ट्रेंड है वो एक्सपीरियंशियल आर्ट का है, इमर्सिव आर्ट का है, जिसमें हम पब्लिक आर्ट इंस्टॉलेशंस को भी लेते हैं। तो सबको जोड़ के सबसे साझा करके जो हम काम कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, वो जो ट्रेंड है वो सबसे ज़्यादा उभर के आ रहा है और वो एक दिन पे दिन बहुत इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है। चेंज इज़ दी ओनली कॉन्स्टेंट, आई वुड से। सो उसी चेंज को देखते हुए ट्रेंड्स उभर रहे हैं और टेक्नोलॉजी इज़ अनदर फैक्टर विच इज़ इम्पैक्टिंग आवर ट्रेंड्स, और स्पेशली डिजिटल विद द पैंडेमिक, लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड। वी आर कनेक्टेड ग्लोबली and the only trend which came out was digital and virtual trend. So we saw a lot of online art happening, lot of 3D motion happening. हम रास्ते निकालते हैं, ट्रेंड्स उससे भी बनते हैं जब हम रास्ते निकालने करते हैं, और जो हमें इम्पैक्ट कर रहा है उससे हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उससे भी ट्रेंड्स निकलते हैं। तो ये ट्रेंड निकला कि अब घर में बैठे हैं, अपने अपने कमरों में हैं, आइसोलेशन में हैं, पर हम दुनिया के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, हम अपने आप को अभिव्यक्त कैसे कर सकते हैं। उससे जो ट्रेंड्स निकले, जो डिजिटल ट्रेंड्स निकले, और हमने अपने कंप्यूटर के द्वारा, ऑनलाइन द्वारा कई सारे कोशिश करी, अभिव्यक्त करने की कोशिश करी अपनी, उसमें बहुत सारे ट्रेंड्स निकले, जिसको हम वर्चुअल या 3D मोशन ट्रेंड या ऑनलाइन ट्रेंड या सोशल मीडिया के द्वारा भी हमने बहुत सारी एक्सप्रेशन की जो करी, और सोशल करेंसी हमको एक मिली, जिससे हम अपने परिजनों से भी बात कर पाए और लोगों के साथ भी बात कर पाए, नए नए लोगों से जुड़ पाए इस दौरान। और उस दौरान और बहुत सारे ट्रेंड्स निकले। हंस उल्रिच ओब्रिस्ट एक क्यूरेटर हैं जिन्होंने किचन से अपना एग्जीबिशन शुरू किया था, और उसके बाद में बहुत सारे नए नए तरीक़ों से उन्होंने क्यूरेशन करे, बहुत सारे अपनाए, टेक्निक्स अपनाई, मीडियम अपनाए, और उससे बहुत सारे ट्रेंड्स उभर के आए।
So immersiveness is one aspect, experiential aspect is another aspect जो कि ट्रेंड है, और सबको जोड़ के चलने वाला जो है वो आस्पेक्ट सामने आया, और उसी से पब्लिक आर्ट्स उपजा जो सबको साथ लेके चलता है, और जो भी सब कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको कितने बेटर तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस टू हियर योर व्यूज़। एंड सर का मैं जानती हूँ कि आप बड़ौदा से जुड़े हुए हैं और एजुकेशन से हैं। सो मेरा जो तजुर्बा है वो एजुकेशन फ्रंट से आएगा। सो हैविंग अंडरस्टैंड दैट आर्ट एंड डिज़ाइन दे गो हैंड इन हैंड। ग्लोबली भी अगर आप देखेंगे तो डिज़ाइन स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ में जो भी डिपार्टमेंट है वो आर्ट एंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट कहलाते हैं। अगर वो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन भी है, चाहे वो हमारे वहाँ जैसे इंडिया में तो क्या है, उसे समझ के तौर पे फैशन डिज़ाइन, ज्वेलरी, जो भी हमने अलग अलग नाम दे रखे हैं, ये सब भी कोर्सेज होते हैं, सभी आर्ट एंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट के अंदर के तहत आते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि ये अप्लाइड आर्ट है। जहाँ पर हम स्कल्पचर की बात करते हैं, एक ज्वेलरी के पीस को हम एक अप्लाइड आर्ट में, मेटल के अंदर में देखते हैं। वही गारमेंट को हमने फैब्रिक को मीडियम की तरह यूज़ किया है और उसे हम वेरेबल आर्ट कहते हैं। सो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पर हमें ये देखने की ज़रूरत है कि जो ग्लोबल मार्केट में हम ट्रेंड्स की आज बात कर रहे हैं, वहाँ अब लिमिटेशन नहीं रही है। पहले एक लिमिटेशन थी कि हमारे पास में कैनवस या हम ज़्यादातर कलर या हमारे जो मीडियम्स हैं हम उनके ऊपर बात करते थे। टुडे मीडियम्स आर इमेंस एंड द फील्ड इज ओपन, has opened wide understanding of what art is. And when we talk about art, I feel it has a deeper sense in terms of developing one's aesthetics. So aesthetic कब develop होते हैं? When there is a tolerance towards different cultures, when you can appreciate the perspective of the other, and that is what art brings. So when जब हम डिज़ाइन की बात करते हैं तो डिज़ाइन में जो हम एम्पैथी को जब जोड़ते हैं तो एम्पैथी का भी मतलब यही है कि हम कितने मायने में कितनी चीज़ों को समझ सकते हैं। सामने वाला जो कंज्यूमर है, जो यूज जब मैं मैम से बात करी तो मैम ने कहा आप आर्ट एंड डिज़ाइन, मैंने बोला कौन से डिज़ाइन में? तो लार्जली व्हेन यू लुक एट, आप ज़्यादातर अप्लाइड आर्ट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे ग्राफिक्स, चाहे हम अपने प्रिंट मीडिया की बात करें या टुडे सोशल मीडिया हैज़ बिकम अ बिग प्लेस एंड द डिजिटल इन्वायरमेंट, तो ये सब इन एरियाज़ को ही ज़्यादातर हमने आर्ट के साथ जोड़ा है। क्या हमने इन सारी चीज़, जहाँ डिज़ाइन के सारे पहलू आते हैं, इंटीरियर हो या फैशन हो या ज्वेलरी हो, जिनके साथ हम हर रोज़ हर समय अपना जीवन बिता रहे हैं, वो उसमें क्या हम आर्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वहाँ हम आर्ट को ले जाने का काम कैसे करने लग रहे हैं? तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो डिज़ाइन स्कूल्स हैं उनका स्टूडेंट्स के प्रति एक, जहाँ तक स्किल का पार्ट आता है, वहाँ पर हम उनको टेक्निक्स के द्वारा, टूल्स के द्वारा सिखाते हैं। वो शायद आर्ट में भी जब हम काम करते हैं तो ये चीज़ें आती है। तो हमें इसके दायरे को बड़े रूप में देखने की ज़रूरत है कि हर चीज़ जो हम दुनिया में कर रहे हैं उसमें वो आर्ट का गुण कैसे लाएं। अगर आज आप आईफोन भी आज देख रहे हैं तो उसमें जो गहराई पे अगर देखी जाए तो वो ब्यूटी जो है, the art is there in that iPhone, that is why it is so aspirational today on the planet. तो लोग कहते हैं कि भाई अपने इन्होंने स्टीव जॉब्स में क्या खूबी क्या थी, तो वो कैलीग्राफी की क्लासेस अटेंड करा करते थे, उनका मन नहीं लगता था दूसरी क्लासेस में, तो वो कैलीग्राफी को ही बहुत अच्छे से उन्होंने सीखा क्योंकि उनका जो कीन इंटरेस्ट कैलीग्राफी में था। इस वजह से जो फॉन्ट्स हैं वो आईफोन के बेहतरीन है दुनिया भर में। तो कहने का मतलब ये कि वो टेक्नोलॉजी नहीं जानते थे, पर उन्हें ब्यूटी, एस्थेटिक्स एंड डिलाइट, ये 3 शब्द के साथ में उनका बहुत गहरा नाता था। तो मेरा ये मानना है कि जो आज की तारीख में जब हम इमर्जिंग ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं तो NFTs आ रहे हैं, नॉन फंगिएबल टोकन्स आने लग रहे हैं, जो कि क्रिप्टो के ज़रिए से आप डिजिटल एसेट क्रिएशन करते हैं। टुडे हमने आज इतने सारे हमारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इतना सारा काम कर रखा है, वो दुनिया तक पहुंचेगा कैसे? हाउ डज़ इट कि भाई कितने लोग हैं जो ओन करना चाहेंगे? कैन NFTs make it possible? So I think somewhere हमें ये देखने की ज़रूरत है, that's the way we can archive our our legacy, our heritage, because there are people from different parts of the world. Art is a great playing ground for learning, and learning again is not, it's about again the understanding of different cultures and understanding different value systems, because
जहाँ तक हम टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी और टूल्स की बात कर रहे हैं, वो तो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट में। अप्लाइड टूल्स और टेक्नोलॉजी आपको हमेशा मिल जाएंगे, लेकिन ये जो वैल्यू जो नर्चर करती है आर्ट, उसकी जो गहराई है, उससे हमें, चाहे हम कोई स्टूडेंट किसी भी तरह का सब्जेक्ट पढ़े, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की होना चाहिए हर, चाहे वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट पढ़ रहा हो या आर्किटेक्चर। आई थिंक आर्किटेक्चर में तो है ही, खैर एनीवे इट इज़ अ फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन। सो यू नो, कॉल द क्रिएटिव एंड द कल्चरल इंडस्ट्री, जिसको हम कहते हैं द CCI, जिसके अंदर में आर्किटेक्चर टू ऑल दीज डिज़ाइन फैकल्टी, फैशन, ज्वेलरी, इंटीरियर्स, ग्राफिक्स, प्रोडक्ट डिज़ाइन। अगर प्रोडक्ट में भी आप देखिए, द ब्यूटी, द एस्थेटिक, सबसे पहले अगर आप प्रोडक्ट भी ले रहे हैं तो आप उसका ब्यूटी एस्पेक्ट देख रहे हैं। फंक्शनैलिटी तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में हो सकती है, लेकिन जहाँ ब्यूटी होती है वही हमें अपील करती है। वो कलर के माध्यम से हो सकती है, टेक्सचर के माध्यम से हो सकती है। सो आई थिंक दीज आर एट वेरी नेसेंट स्टेज दैट वी गेट टू लर्न इन एन एजुकेशन सिस्टम, एंड आई थिंक हाउ टू कैरी इट इन लाइफ, इन आवर डेली लाइफ्स, इज़ वॉट इज़ दैट वी नीड कैन बिल्ड, यू नो। एंड अगर मैं इंडिया के लिए ट्रेंड देखूँ तो पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इंडिया में एक माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, कि हमारी जो समझ है, हम उनमें सबको हमने साइलोज में डाल रखा है, सब चीज़ों को, कि ये एक अलग फैकल्टी है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, जबकि हम बहुत इंटरडिसिप्लिनरी है और मल्टीडिसिप्लिनरी हमारा अप्रोच होने की ज़रूरत है। और जो वो मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनके अंदर में इस तरह की मानसिकता डेवलप हुई हुई हो, जो ये देख सकते हैं, जिन्हें ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स दिख रहे हैं, वो कनेक्शंस दिख रहे हैं, एंड दे कैन कनेक्ट द डॉट्स वेल, वही स्टूडेंट्स हैं जो लोग एक्सेल कर पाते हैं। तो अगर भवानी जी का जब मैं काम देख रही थी, तो उन्होंने जब वो अपने जो प्रिंट्स बनाए हैं, उन्होंने उन्हें फर्नीचर के ऊपर में लेके गए हैं, सो विच इज़ सो अमेजिंग, एंड लुक एट द काइंड ऑफ ब्यूटी इट ब्रिंग्स टू अ पर्टिकुलर स्पेस। आपके ब्रदर हैं, ये पेपर मैशिया में काम करते हैं, एंड मैंने, चाहे वो मुझे मिरर फंक्शनैलिटी के लिए चाहिए, लेकिन जब मैं उस मिरर को मेरे कमरे के बाहर लगा के रखती हूँ तो उसके और बहुत सारे मायने हो जाते हैं, केवल शक्ल सूरत देखने के अलावा भी। तो वो जो ब्यूटी है उसमें, वो लंगूर चढ़ रहे हैं और पेपर मैशी में बने हुए हैं, वो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को अलाइव करने लग रहे हैं। सो देयर इज आर्ट दैट कैन गो इनटू एवरी एस्पेक्ट एट एवरी इंच ऑफ आवर लाइफ, and that is the beauty, I think, from a global perspective. If we want India to actually have that advantage, I think that's very key for us to build as a culture first now. And हमने इसको क्या है, एजुकेशन, पढ़ाई, नंबर, डिग्रियों के मार्फत बना दिया है इसे, जिससे निकल करके हमें उसका ट्रू रेलेवेंस और सिग्निफिकेंस देखने की एक परंपरा बनाने की ज़रूरत है। तो मैं अभी जो डिज़ाइन कल्चर का एक इनिशिएटिव हमने शुरू किया है, तो हमने देखा तो स्कूल में भी अगर हम आर्ट को देखते हैं, तो हमने काफ़ी आर्ट फैकल्टी के साथ काम करने की कोशिश करी। तो हमने देखा कि टीचर्स वही के वही सेम चीज़ें करवाती हैं, वैसी की वैसी ड्राइंग्स बनवाती हैं, बच्चों की सबकी एक जैसी दिखती हैं। तो वो जो नवनीकरण है, जिसमें वो सेल्फ एक्सप्रेशन है, वो मिस हो रहा है। तो आई थिंक दिस इज़ वेयर आई थिंक लॉट ऑफ अनलर्निंग नीड्स टू हैपन, बिकॉज ठीक है जिस परिवेश में वो पढ़े होंगे, पर आज का यूथ है वो बहुत जागृत है, वो सोशल मीडिया पे है, क्रिएटिविटी के नए मायने बन चुके हैं। अभी आज की तारीख में सबके हाथ में आईफोन है, सबके हाथ में कैमरा है, सबके हाथ में सब तरह के टूल्स हैं। कोई किसी को आज के तारीख में ये डिक्टेट नहीं कर सकता कि ये सही है और ये गलत है और ये नहीं है या ये नहीं है। बट व्हाट इज देन दैट न्यू language of creativity would be now. So that's where probably I think as educators, as practitioners, we need to probably propagate that and see how we can build a culture where again creativity can be nurtured in a new way. That's what I have to say. Question? एक इन हाँ हाँ जी, करेक्ट, रेंडरेंस, हाँ, टेम्पलेट,
I would say that it's fine. Many things will come. So I will just talk about this, that we are all evolving. So आप जो 20 साल पहले थे as an artist, आज वो नहीं है. We all evolve with time, right? And I think everybody has the right to evolve, and we are all evolving. So I think there's no audit actually required. Audit तो हर इंसान अपने पैमाने से करता है. Benchmark कभी होता नहीं है. हर इंसान का अपना benchmark होता है ना? तो हाँ. So, sir, excuse me. Yeah. As Yeah. Can we continue with Vijay sir? And thanks to sir. Have a big clap for him. He has given a certain perspective to us. Thank you so much. Yeah, of course. Just I'll ask him to join us again. I'll request, then I'll introduce. Hello, 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 hello. Yeah. So, Vijay sir. Thank you, Sangeeta, for giving me this opportunity. Actually, मैं start यहाँ से करूँगा कि first of all, I'm Vijay Sharma. I'm like running an institute and an art gallery in the name of Kalaneri. And we are into education and we are into promotion of art, and we are doing lot many activities. What here in Jawahar Kala Kendra is happening, you can say that we have a small KKK, is Kalaneri Kala Kendra, very nearby to this place. और थोड़ा दूर कर लूँ सर? ओके. हाँ, वो मेरे ख्याल आवाज़ पहले नहीं आती थी, अभी मैं पास में लेके आया. थैंक यू सो मच सर. सो सबसे पहले हमने एक आर्ट एजुकेटर जिन्होंने 6-7 दशक एजुकेशन में लिए, उन्होंने अपनी बात को रखी. एंड उसके बाद जो एक्चुअली इस आर्ट से एजुकेट होने के बाद में प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, उनसे हमने बात करी. एंड उसके बाद एक कंप्लीट आर्ट इंस्टीट्यूशन को रन करने वाले, उनसे हमने जाना बेसिकली आर्ट एंड डिज़ाइन ट्रेंड्स ग्लोबली, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं. तो एजुकेशन भी आ गया, उसमें डेवलपमेंट भी आ गया, और उसके डिफरेंट डिज़ाइन डिपार्टमेंट एस्पेक्ट्स भी आपके सामने आ गए हैं. मेरे लिए बहुत कुछ बोलने के लिए नहीं है यहाँ पे, बट आई वुड से कि जो प्लेटफॉर्म हमें कुछ वर्षों पहले, ख़ास तौर से हम कहें कि कोविड से 2 साल पहले हमें नहीं मिलता था, वो उतना बड़ा प्लेटफॉर्म इन 2 साल में एजुकेशन लोगों को ज़रूर मिल गई है. और हम जहाँ पहले बहुत कम लोगों से जुड़ पाते थे, वहाँ अब हमारा जुड़ने का दायरा बहुत बड़ा हो गया है. और सीखने का जो पहले लोगों में ये था कि वो एक इंस्टीट्यूशन में जाके ही सीखते थे या किसी सीनियर से सीखते थे, लेकिन अब उनको ये प्लेटफॉर्म इतना ग्लोबली मिल गया है कि वो इंटरनेट के ज़रिए बहुत से लोगों को, बहुत से सेमिनार्स को अटेंड कर पाते हैं अपने घर बैठे हुए. तो आर्ट एंड डिज़ाइन के साथ में जो मार्केट का एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, विच इज़ रिमार्केबल. एंड मेरा ख्याल है कि चेंज तो जैसा सबने बताया कि ये होना है,
एंड जो ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ बिहोल्डर पहले हुआ करता था वो अभी भी है, लेकिन अब ज़्यादा लोगों के पास में आपकी चीज़ जाती है, वो ज़्यादा लोगों के समझ की या कह लीजिए उनकी चॉइस की चीज़ है, तो वहाँ तक अब आपकी रीच है। हम लोगों का स्पेशली अगर हम बात करें आर्ट प्रमोटर्स का या आर्ट गैलरीज़ का, तो उनका काम यही होता था कि वो पहले भी आर्टिस्ट को प्रमोट करते थे, लोगों तक पहुंचाते थे, और अभी भी उसको डिजिटली ट्रेंड के साथ में उसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस एरिया में इमेंस पॉसिबिलिटीज़ हैं, चेंजेस और भी आ रहे हैं। पहले सिर्फ लोग पर्सनली होल्ड करते थे आर्ट को, अभी वो क्या कहते हैं, डिजिटली होल्ड कर सकते हैं उसको। पहले हमें करेंसीज जो गवर्नमेंट की होती थी, अभी एक ऐसी करेंसी मार्केट में आ गई है जिसको कि लोग घबराते हैं यूज़ करने से, लेकिन फिर भी उस पर काम कर रहे हैं। तो हर चीज़ में अपने आप को एजुकेट करके आप अपना इन्वेस्टमेंट या अपना मार्केट या अपना बिजनेस इस एरिया में भी कर सकते हैं। पर्टिकुलरली अगर यहाँ मैं बात करूँ, जो एक मेरा अपना थॉट था कि किस तरीके से हम जो नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, जो जैसे अभी मैम ने बात करी कि सर के जो प्रिंट्स हैं वो उन्होंने टेबल पे देखे, ये पहले एक व्यक्ति एक ही चीज़ पे कर पाते थे या एक या दो प्रोडक्ट पे कर पाते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजीज़ इतनी एडवांस हो गई है कि हम मल्टीपल उनको डेवलप कर सकते हैं और ये ग्लोबली लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो जो भी नए स्टूडेंट्स अब आ रहे हैं या अब जो काम कर रहे हैं, उनको एक ओपननेस मिल रही है जो पहले नहीं मिला करती थी। ये ओपननेस मेरे ख्याल है अच्छे इंस्टीट्यूशंस के डेवलप होने की वजह से हो रही है, और उनको एक एरिया फ्रीली अपना वर्क करने के लिए दिया जा रहा है। इस वजह से भी वो चीज़ बाहर आ रही है। जो एक इनोसेंस बच्चे में होती है जब वो एक पेंटिंग को बनाता है, उस पर किसी चीज़ कोई चीज़ हावी नहीं होती है, वो का वही चीज़ अब मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो बड़े लोग भी इस फील्ड के अंदर और डिज़ाइन की फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। दोनों हमेशा साथ थे, साथ चलेंगे, साथ ही रहेंगे। एंड मेरा ख्याल है अब मार्केट हम लोगों का बहुत बड़ा हो गया है, तो बहुत अच्छा है कि इस फील्ड में काम किया जाए। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। थैंक यू। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत वाइड है और इसकी ऑथेंटिसिटी भी मेंटेन की जा सकती है, बिकॉज कलेक्टर्स जो हैं, क्यूरेटर्स जो हैं, ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं, राइट। उसके कारण हम उस सिस्टम को मेंटेन कर रहे हैं। तो एक जो वर्ड होता है ट्रेसिंग एंड रेसिंग, इसके कारण वो ख़त्म हो जाता है। नहीं तो एवरीबडी इज़ कमिंग, सो ट्रेस किया, सेल किया और वो हिट हो गए कॉमर्शियल मार्केट में। लेकिन जब ये ऑथेंसिटी आती है कि हमारे पास आर्ट क्यूरेटर हैं, आर्ट कलेक्टर्स हैं, तो हमें उनको ही कांटेक्ट करना चाहिए, जिससे कि हमारे काम को आगे बढ़ावा मिले करेक्ट तरीके से। सेकंड थिंग, मैं ये जानना चाहूँगी आप लोगों से कि जो साइज़ और स्केल होता है, पर्टिकुलर मे बी विद कंसेंट ऑफ अ इंटीरियर, लाइक मैम ने छेड़ी बात कि कोई प्रिंट जब वो टेबल पे आ जाता है तो उसके साइज़ में उसका स्वरूप पूरा ही चेंज हो जाता है, और उसका जो इंटरकनेक्शन विद डिस्प्ले होता है, कहाँ पे वो इंस्टॉल किया गया है, उसके बारे में हमारा इसमें इसका कितना बड़ा रोल है, इसको किस तरह से सोचना चाहिए, या ये मार्केट में किस तरह से वर्क करता है। अगर आप इस तरीके से इसको बड़े वे में कुछ अपने विचार रखें तो बहुत अच्छा होगा। आपको दें। ओके, बिकॉज मैं डिज़ाइन से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे ना जब भी मैं कोई आर्ट को देखती हूँ तो मुझे उसका फट करके अप्लाइड वर्जन दिखता है उसका, कि ये कितने साइज़ में इनलार्ज हो सकता है, कितना छोटा लगना चाहिए, कहाँ गारमेंट में लगेगा तो किधर लगेगा, एप्लीकेशन उसका मुझे। सो दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रैक्टिस, and it comes with practice, you know, so you do a lot of mistakes and that's how you learned it. तो similarly एक artist भी जब करता है तो कितनी चीज़ें उसकी ख़राब होती है। एक लेखक जब लिखता है तो बहुत सारे अपनी
लिखे हुए टुकड़ों को फेंकता है, तब जाकर के वो निकल के आती है. सो आई थिंक यू नो the view to be able to see that, you know, art is something that should be visible more and more rather than just one exhibition. या कि आपने एग्जीबिशन लगाई तभी आर्ट दिखे. एंड अगर आप वहाँ जैसे अभी आप सामने वाली दीवार पे देख रहे हैं, आई एम सीइंग दोज ब्यूटिफुल एलिमेंट्स. मुझे दिख रहा है ये हर एक सुंदर कमीज बन सकती है ये विद दिस लिटिल रेड एलिमेंट हियर, विद दैट लिटिल की दैट्स देयर व्हिच कैन बी डिजिटली translated and taken onto a shirt, and this shirt will sell for not less than 12 to 15,000. Which kind of a material is going to be then practices should be then like that? Yes. So now this is where the people in the fashion, they know, you know, how to do it, right? So it could be silk, it could be linen, it could be cotton. So every fabric would take it differently, right? So you could either take it digitally, because I know painting may not be having that long time longevity in terms of the wash and things. That could also be possible. But you know, there's so much of possibility with every creation that can be taken into life every time. So if she's wearing a beautiful piece here as a scarf, I mean, if somebody had put it like a piece of art somewhere else, it would have looked differently, but she's wearing it there. So I think that's how we need to probably start seeing things, that, you know, there's more possibilities in terms of your own creation when you see yourself as an artist, right? Yeah. Yeah. Ways of seeing. Uh-huh. That's ways of seeing things, you know, how you see in one perspective, there's another lens to it. Yep. Yeah. 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 So yeah, that's ways of things. Your perspective could be entirely different than my perspective. So yeah, the glass half and half full glass. And I think why we always talk about collaborative work is because the collaboration brings out the best of everybody. Maybe इन्होंने जिन्होंने पेंट किया है, उनको ये पता नहीं है गारमेंट पे कैसे अप्लाई होगा या एक इंटीरियर स्पेस में कैसे होगा, बट एक इंटीरियर डिजाइनर को पता है कि इस चीज़ को कैसे मुझे यूज़ करनी है, या एक फैशन डिजाइनर. So it's always nice to work in a collaborative manner today, and that's how I think the whole idea of being the market, you know, I mean being into the market can happen. Otherwise, a lot of artists are struggling because not everybody has that space in their house to put one piece of art there, you know, and it can have its use. Of course. Already a time when और उस कैलीग्राफी से किस तरह से ये मोबाइल का डिज़ाइन और ये सारी चीज़ें आई, लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कैलीग्राफी क्या है. अगर वो हम समझ लेंगे तो इस बात को समझ लेंगे कि वो क्यों प्रभावित हुआ कैलीग्राफी से. देखिए, कैलीग्राफी क्या है, वो एक लैंग्वेज के सिंबल्स हैं. एक बात ये क्या हुआ, ये अप्लाइड यूज़ हुआ उसका, ठीक है. लेकिन कैलीग्राफी से वो क्यों प्रभावित हुआ, इसलिए नहीं कि वो भाषा है, केवल वो सिंबल्स हैं जो कि कम्युनिकेट करते हैं कुछ, लेकिन वो इसलिए प्रभावित हुआ कि दैट हैज़ एस्थेटिक फॉर्म. तो वो जो एस्थेटिक फॉर्म है, वो अभी इससे पहले ड्रामा की में बात हो रही थी, तब मैंने इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से उस समय बात की थी. अभी दूसरे, और यही रीज़न है कि ये इंटरेक्टिव होना चाहिए. जो परफॉर्मर बात कर रहा है, डिज़ाइनर बात कर रहा है, आर्टिस्ट बात कर रहा है, आर्किटेक्ट बात कर रहा है, तो जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, नहीं अप्लाइड प्लस आर्ट फॉर्म, तो वो कैलीग्राफी क्यों अट्रैक्ट करती है कि कैलीग्राफी वो अपने आप में एक आर्ट है, वो कम्युनिकेट लैंग्वेज कर रही है, वो उसका दूसरा पर्पज़ है. लेकिन वो कैलीग्राफी अपने आप में इतनी सुंदर है, इतनी ब्यूटीफुल है कि वर्क ऑफ आर्ट की तरफ आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं अपने घर में भी. तो ये चीज़ हमेशा समझनी पड़ेगी, अप्लाइड प्लस एस्थेटिक. अभी स्टेज की बात हो रही थी, तब भी मैंने यही बात कही थी कि भाई आप ड्रामा, वो एक कह रहे थे कि भाई हम ड्रामा के द्वारा कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं. उन्होंने एक वो लिया, आइडियल लिया, एक आइडियोलॉजी ली, और कॉन्स्टिट्यूशन को पर्टिकुलर एक वो बात थी जिसको कि वो कम्युनिकेट करना चाहते थे. दैट इज़ ओके, वो कम्युनिकेशन तो ठीक है, लेकिन वो वर्क ऑफ आर्ट रहना चाहिए. कम्युनिकेशन का पर्पस भी सॉल्व करे और वर्क ऑफ आर्ट भी रहे, तब है.
So, sir, let's continue with the more because public art installations और बड़ौदा का अपना खुद का एक सर ने जो जिया है एक्सपीरियंस है और भी जगहों का सिटी का जो एक्सपीरियंस जिया है और विजय जी का भी जो एक्सपीरियंस रहा है हम उसको भी जानना चाहेंगे तो लेट्स कंटिन्यू विद दैट। मैं इतना सा कहूँगी जो आपने स्केल की बात करी या हम कुछ भी ट्रांसलेशन कैसे डिसाइड करते हैं फ्रॉम अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ आर्ट टू अनदर और डिज़ाइन वाइज व्हेन वी वांट टू कन्वर्ट into a garment or into interior design or wherever we want to, right? Translate it. So, I mean, anything and everything has to answer those 5 basic questions. If those questions are answered, what is it, where it has to be, so then we have to understand the surface of wall, you know, or the spatial alignment, where it has to come. Then, why are we doing it? That's the most important question. What is the purpose of doing it? Purpose can be anything and everything, but we have to bring that clarity of purpose. If that why is answered, what is answered, where is answered, and then comes how we are going to do it. So whether it is what technique are we going to apply, or what practice are we going to, how are we going to do that, or who's going to do that, you know. It's a craftsman, it's artisan, it's an artist, or it's an engineer, how. So if these 5 questions are answered, I think we have our answers ready. What scale we have to translate into. I think you very beautifully put who, when, what, why, where, how. These are the 6, you know. Yeah. And they're answered, I think. He wants to give the shape and the form to the space. Yes, yes. So yes. we want to know from the visual sir how we want to ask him. Excuse me, I cannot aid in your area of expertise. My simple query will be today's changing marketing trends, consumption-oriented commodification of artwork, and the impact of globalization. That's whatever I think the core topic, you know, which we're supposed to discuss: artwork, marketing, and the impact of globalization. Now, as you said, that the utilitarian aspect, or the kind of like the old masters' work cannot be purchased in galleries, or so there was a trend of reproductions. A commoner can go and buy, paying a very few rupees or dollars, can get a Cézanne or any Indian artist. Now, the complex problem is how to look into the complexities of art market in present day art scene. Like when we come across to the upcoming artists in Baroda, because Baroda is a hub of artists, and you will find almost all the shades of art growing in last 6 decades is there. So that can be a great place where you can conduct a study on art marketing, because many times it found that the buyers coming and they are fixing the rate of painting, not the artist. They will ask the buyer, now whatever you feel, you put your figure. Then, okay, ठीक है, इतना है, उतना वो करके bargaining होता है. तो इस सब ऐसे marketing trends में किस तरह से artist survive कर रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा issue है. जो वो expect कर रहा है, क्या वो उसको price मिलता है, और या उसके नाम के आगे वो टैग लगा हुआ है कि जैसे बड़े अच्छे आर्टिस्ट का प्राइस तो आप जो मांगोगे दे देगा वो, या जो भी आपके ऑक्शन हाउसेज दे फिक्स द ट्रेंड्स ऑफ प्राइस ऑफ नो आर्ट वर्क. अब वो अगर 5 लाख की एक पेंटिंग भूपेन खक्कर की बिकती है, या किसी भी अपकमिंग आर्टिस्ट की शूज़ भी या कोई भी ऑक्शन हाउस से बिकती है, तो उसका टैग हो गया, तो 5 लाख से नीचे बेचेगा ही नहीं उसको. तो इस तरह के जो सारे ऐसे जो ट्रेंड्स चल रहे हैं पैरेलल आर्ट मार्केटिंग में, और किस तरह से अब जैसे इंडियन आर्टिस्ट जो फर्स्ट लेयर के हैं उनका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सेल करने का, दे आर कंफर्टेबली सेलिंग देयर आर्ट वर्क. ना जो अपकमिंग या जो बिल्कुल बेचारे जो आ रहे हैं ऊपर, उनका बहुत बड़ा सा प्रॉब्लम होता है. तो इन सारी चीज़ों को अब जो बात रही है, जैसे अब वही आर्ट वर्क, जैसे मैंने देखा है कि बॉम्बे की आर्ट गैलरी में एक आर्टिस्ट ने अपना डिस्प्ले किया है, सारा कुछ बिका, 5-6 आर्ट वर्क बच गए, तो वो उसने बोल दिया कि ठीक है टेलीफोन बीडी वाला आएगा, ये आ जाएगा, जो देना हो दे दो, और पूरा वाइंड अप करके चले आए. ये भी चल रहा है. तो अब इसे अब फिर वो एक सेक्शन बॉम्बे में भी होता है, बॉम्बे आर्ट गैलरीज में ही है
कि एक आर्टिस्ट एक काम बनाता है एलीट क्लास के लिए, एलीट द आर्ट कनोजर्स, आर्ट लवर, दोज हू नो हाउ टू एप्रिशिएट वर्क ऑफ आर्ट, दोज हू नो द मनी वैल्यू ऑफ आर्ट वर्क। अब वही आर्टिस्ट एक काम ऐसा बनाता है 20-25 पेंटिंग जो साइड में रख देता है गैलरी के साइड में, जो बाद में आके इंटीरियर डेकोरेटर्स बिल्डिंग में जो जोड़े वो लोग खरीद के ले जाते हैं। अब ये सब प्रैक्टिकल रियलिटी है। अब नाउ जैसे यू आर क्यूरेटिंग शोज, नाउ यू जस्ट लेट मी नो हाउ टू प्रिजर्व इंस्टॉलेशन। बहुत कम लोग खरीदते हैं बिकॉज दे आर टेम्पोरल। द टेम्पोरलिटी ऑफ आर्ट वर्क इज ऑल्सो गिविंग मेनी प्रॉब्लम्स इन आर्ट मार्केट ऑल्सो। तो वो अच्छा इंस्टॉलेशन करके भी बेचारे उसको रख नहीं पाएंगे बिकॉज इट्स जस्ट इन दैट पर्टिकुलर टाइम एंड स्पेस। तो व्यूअरशिप और चेंजिंग ट्रेंड्स अंडर ग्लोबल काइंड ऑफ फोर्सेज इज अ वेरी डिस्टर्बिंग सिचुएशन। और इंडिया में कोई ऐसे पैरामीटर्स हैं ही नहीं आर्ट वर्क के, उसकी वैल्यूएशन कैसे करने का, क्या करने का। तो अभी अचानक हमने देखा है बड़ौदा में गायतोंडे और सूजा पेंटिंग ही पेंटिंग आ गई हैं सब, और दे आर इन करोड्स ऑफ रुपीज। अब उनको वो बिक नहीं रहे हैं, भूपेन खक्कर कॉपी हो रहे हैं। जो आर्ट स्कूल के हमारे फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स के जो आर्टिस्ट काम नहीं मिल रहा था पेंडेमिक पीरियड में, तो कॉपी करने लगे हैं। इससे आई हैव ऑब्जर्व दैट भूपेन खक्कर इज बीइंग कॉपीड बाय द पेंटर्स फ्रॉम बड़ौदा। अब उनकी मजबूरी है। और नाउ द लेटेस्ट ट्रेंड इज ऑफ आउटसोर्सिंग ऑफ ए artist kind of extension. Suppose if I am a grade artist, I have to paint 10 canvases within a stipulated time. I will hire 10 students from faculty fine arts and I will ask them, okay, go this surface, that surface. I know there is skills, so one is making trees, another is making तो ये सब चल रहा है, इट्स वेरी क्योर। तो कलेक्टर भी बेचारा परेशान है। अभी इनके पास अगर कोई, पहली बात तो ये ओल्ड मास्टर्स को ज़्यादा लाएंगे नहीं बिकॉज इनका भी मार्केटिंग इंटरेस्ट है, ओल्ड मास्टर्स को कौन खरीदेगा। लेकिन जो अपकमिंग आर्टिस्ट है इनको भी तो वो आँख डेवलप करनी पड़ेगी कि क्या वास्तव में आगे चल के बिकेगा। ये जो आज आपने 1 लाख खर्च किया, 5 साल बाद आप क्या 10 लाख ला पाओगे? इस प्रैक्टिकल रियलिटी। हाँ, तो इसका ये सारे सब चीज़ें एकदम मिक्सअप हो गई हैं, तो इनको हाउ टू एड्रेस, ये एक बहुत बड़ा इशू है। थैंक यू। उसमें से जो आपने पहले बोला, अगर हम उसको कमर्शियल एस्पेक्ट में, किसी भी आर्ट को अगर हम कमर्शियल एस्पेक्ट में देख रहे हैं तो हमें प्योरली कमर्शियल एस्पेक्ट में देखना पड़ेगा, फिर आप कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी पे बात नहीं कर सकते। तो उसका एक सिस्टम है, मार्केटिंग का एक सिस्टम है। आप किसको बेच रहे हैं, आप एलीट को बेच रहे हैं तो उस तरीके से बनाएंगे। अगर आप कमर्शियल एस्पेक्ट में ही देख रहे हैं तो उसको उसी तरीके से देखना पड़ेगा और हमें उसको एक्सेप्ट नहीं। सी, इफ एनी प्रोडक्ट इज सेग्रीगेटेड, पैकेज्ड according to the audience, if you are talking about commercial aspect, right? No, I'm mainly focusing on visual arts. Yes. Not on the kind of interior design. So visual arts. एक गैलरी में पेंटिंग एलिट के लिए, पुअर मैन के लिए नहीं हो सकता, फिजिकली से एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। वर्क ऑफ आर्ट का प्रॉपर। If it's a market, it is possible. If you are considering it as a market, it's possible. That's audience target करके क्यूरेट करते हैं शो। अगर नहीं आर्टिस्ट ऐसा नहीं करता है, तो अगर मार्केट स्पेसिफिक अगर आप बात कर रहे हैं तो उसको उसी तरीके से देखना पड़ेगा और आर्टिस्ट को भी उसी तरीके से सिस्टमैटिक और प्रोफेशनल वे में केटर करना पड़ेगा। So, इसीलिए आर्ट्स मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स होते हैं। I would add on a thing that आर्ट इज बेसिकली, जैसे अभी मैम ने कहा कि वो शर्ट अगर बनेगा तो दैट वुड बी कॉस्टिंग 12-15,000. नाउ इट इज अप टू द पॉकेट ऑफ अ पर्सन. इफ ही कैन अफोर्ड इट ही कैन बाय इट, इफ ही कैन नॉट अफोर्ड इट लीव इट एंड गो, आप कहीं और देखिए. सो दैट इज व्हाट द आर्ट इज. आर्टिस्ट ने जो भी आर्ट बनाया है इट हैज गॉटन अ वैल्यू. अभी वो वैल्यू मैं पे कर सकता हूँ तो आई विल बाय इट, अदरवाइज आई वोंट आस्क एनीथिंग अबाउट इट कि नहीं ये इतना महंगा है या इतना कम होना चाहिए, दिस होना चाहिए. ये आपके पॉकेट का नहीं है. यू गो टू द अदर आर्ट एंड गो देयर. जी.
तो इसी के साथ में एक चीज़ और भी है जो मिसिंग है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन जो हम हर फील्ड के अंदर अपने पीढ़ियों में करते आते हैं, हर चीज़ के लिए हम अप्रिशिएट करते हैं कि हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, या इस चीज़ में क्या खूबसूरती है उसमें नहीं है। आप यकीनन मानिए कि अगर हम आर्ट की बात करते हैं, हम डिज़ाइन की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम एजुकेट ही नहीं करते हैं। हम सिर्फ जाते हैं, देखते हैं और देख के खुश होके आ जाते हैं। हम सिखाते नहीं हैं किसी को कि ये इतना खूबसूरत क्यों है, ये बना था तो इसके पीछे क्या रीज़न था बनने का, क्या दिमाग लगाया गया था। ये अप्रिसिएशन कहीं पे भी नहीं होता है। एंड दैट इज़ वाई ये जो दो डिफ्रेंसिएशन है फील्ड के अंदर की, एक आर्ट कलेक्टर हैं और एक सिर्फ विजुअल जो पसंद करते हैं कि ठीक है मुझे ये चीज़ पसंद आ रही है, मेरी आंखों को अच्छी लग रही है, मैंने बाय कर लिया, वो मार्केट वाली बात है। लेकिन अप्रिसिएशन होना चाहिए। हमें एक इस तरह की चीज़ें सिखानी चाहिए कि इन्होंने अगर कोई आर्ट बनाया है, इंस्टॉलेशन बनाया है, तो वो क्यों बनाया है, कैसे बनाया है, क्यों अच्छा लग रहा है, होना चाहिए ये। नाउ यू कैन। मेरा इसमें एक चीज़ है कि ये जो प्रश्न है ना, बात के नहीं होते, ये अर्ली चाइल्डहुड से ही होते हैं। ये जो क्वेश्चनिंग का जो हमारा कल्चर है ना, जो हिंदुस्तान में थोड़ा सा कर्व्ड है, लिहाज बड़े छोटे, पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, इसकी वजह से क्या है, कहीं हमारे लिमिट हो गए हैं हम लोग। लेकिन जब भी अगर ये जिज्ञासा जब रहती है, वही जिज्ञासा आगे जाकर के आपको खुद आंसर्स देती है। क्योंकि जो आपका परसेप्शन है, उस परसेप्शन से तो नहीं तो दूसरा जना रंग जाएगा, वो परसेप्शन उसका नहीं होना चाहिए। उसकी खुद की जिज्ञासा उसके लिए आंसर निकाल के देनी चाहिए कि ये क्यों है, ये किस लिए है, ये मटीरियल क्यों यूज़ किया है, इसकी जगह ये करते तो कैसा होता। सो मेरा यही है कि भाई इस तरह का डायलॉग होना चाहिए वेयर पीपल शुड बी एबल टू टॉक, क्वेश्चन, figure it out for themselves. Why? That's going to be a great. I think ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, but ये जो सोच है ये बहुत ही सुंदर है। And thank you. And I must say that please connect with the digital marketing systems also. First of all, I am not agreed everything is collaboration. Second thing, अगर ये collaboration हो तो जो cloud जो बना शिकागो में वो बनता ही नहीं। उसका कमर्शियल पार्ट ये था कि ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि दिस इज़ द स्पेस यू आर फ्री टू ऑर्गेनाइज। अनीश कपूर को जो दिया गया उसका बजट एक्स था। 6 महीने बाद अनीश कपूर ने करीबन 15 टाइम्स पैसा मांगा उसका, इफ एवरीबडी नोज दैट। एंड उस 1-1.5 साल बाद उसने काम करना शुरू किया। उसने क्या बनाओगे, मैंने सोचा नहीं है अभी मैं क्या बनाऊंगा। एंड देन क्लाउड हैड कम, और ये सोचा था कि जो बनाया जाएगा, मैं सिर्फ एग्जांपल वाइज बात कर रहा हूँ कि उसको 6 महीने में उसकी कॉस्ट नहीं निकलेगी, कम से कम 6 साल में निकलेगी। Yes, they recovered the cost within 6 months. So we question last minute. हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये मैं बेस बताऊँ, मेरा कोलैबोरेशन तो नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि इंस्टीट्यूशंस एंड गैलरीज जैसे शेर को कुछ खिला करके ऐसे बिठा देते हैं ना, आप उससे फोटो खींचा पाओ, आर्टिस्ट की वो हालत कर रहे हैं कि ऐसी पेंटिंग बिकेगी, इसको चेंज करेगा तो वो नहीं बिके। सो व्हाट डू यू थिंक, कमर्शलाइजेशन इज ए मिडिल स्टेप। कस्टमर को इंट्रोड्यूस कराए, कस्टमर उनका काम है एजुकेट करना कस्टमर को, और आर्टिस्ट से एक बेटर काम कराना। वो मिडिल जो लाइन है वो आर्टिस्ट की तरफ झुक रही है या कमर्शियल साइड की तरफ जा रही है? देखिए मेरा मानना है, see all kind of people will exist and all kind of models will exist, coexist, right? Where you fit in, what are your value system, what is your approach will decide which model you get into, right? So there's nothing to judge here what is right and what is wrong. There's so many which will always coexist. That's what my understanding is when it comes to the commercial aspect or any aspect for that matter. So I'm not saying collaboration in isolation, you know, it is a context. So one has to identify what is the context. Is it an empowering context कि भाई आपके लिए ये लग रहा है इस collaboration से दोनों जने empower हो रहे हैं, आप जुड़िए, नहीं हो रहे मत जुड़िए। So ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई ये सही होता है और ये सही नहीं होता है। There are various models that can be adopted to come to a particular approach. So such kind of dialogue, such kind of dialogue only allows us to understand different models
that can be taken forward. जी, मेरा सवाल है कि कला का मार्केट, सेल, इन्वेस्टमेंट के अलावा सही मायने में सरोकार क्या हैं कला के आपके नज़रिए से? क्या एथिक्स की बात हो रही है क्या? नहीं मैम, कला मार्केट, एक सेकंड, सेल, बेचना, खरीदना, इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा कला के क्या सरोकार? बहुत कुछ है, लेकिन अभी बात कर रहे हैं एक लाइन में आर्ट मार्केट, ग्लोबलाइजेशन, इम्पैक्ट ऑन द आर्ट मार्केटिंग इन इंडिया, द ट्रेंड ऑफ आर्ट इन कंटेम्परेरी कॉन्टेक्स्ट। आपका क्वेश्चन सर का जो पहला क्वेश्चन था, मैं सर मैं आपकी बात पे एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि जो आपने पहली बात पूछी, दूसरी बात ये थी कि गैलरी में किसी भी आर्टिस्ट की आर्ट वर्क को प्राइज आर्टिस्ट खुद करते हैं, राइट? जिन गैलरीज की सर बात कर रहे हैं वो गैलरीज नहीं है, I want to वो blur गैलरीज the नहीं है voice सर, वो in the behind आर्ट एंड फ्रेम की background शॉप्स होंगी and सर। we'll have another session. Another session. I just want to call Bhavani Shankar sir on the stage to facilitate. Shailendra sir. Thank you so very much for listening us. Then I like to call Yogendra sir. Come on the stage. Come on the stage, sir. To Khushwa sir, Shailendra sir. We are just diffusing the voice here at the background and coming out on the other layer. Yeah. 3 दिन से गड़बड़ कर रहा है सबकी. So and Harshiv sir, to Leena ma'am. Sir. सर यहाँ पे ही रहिएगा. अरे सर कॉन्ग्रेचुलेशन. कॉन्ग्रेचुलेशंस. To Archana Surana ma'am from Harshiv sir, Yogen sir, to Vijay sir, and we want a one photograph here for the whole, please. And I'll be here. And Purnima ma'am, please join us. Purnima ma'am, please join us. Yeah, Anu ma'am.
City Live, a platform to sharing your thoughts.